Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Shahid Latif, Associate Professor at Department of Computer Science, Sarhad University, Peshawar. Today we will start a new lecture from the course of Electronics 1. The course code for Electronics 1 is EE216. While this is 2-1 credit hour course, it means that we have to cover 2 hour theory per week, while there is 1 credit hour which is equal to 3 contact hour lab work requirement as well. The topic we will discuss in this lecture is about various special purpose diodes. If you remember, in previous class we have discussed a special purpose diode naming the Zener diode. Here in this lecture we will discuss some other special purpose diodes. Course details are such that we are in week number 6 and today we will cover lecture number 12, and lecture number 12 is about other special purpose diodes other than Zener diode. Before starting our new lecture, let's have a look on the previous lectures 1 to 11. If you remember, in lecture number 1, we introduced the course of Electronics 1 by explaining the course description, the tentative course outlines, the recommended books for this course for the course of Electronics 1, the prerequisite details, and finally we define the term electronics formally and informally. Then in lecture number 2, we discussed an atom and the structure of an atom by explaining the Bohr atomic model. We also explain or discuss the particles of an atom, that is electrons, protons, neutron and nucleus. After that we discuss the atomic number of an atom, similarly the valence electrons, the orbits and the shells, and finally the process of ionization where the losing or gaining of electron takes place were discussed in lecture number 2. In lecture number 3 we classify the matter on the basis of conductivity, and as a result we have 3 classes, that is the insulators, the conductors and the semiconductors. Insulators are those material which cannot conduct the electric current under the normal conditions, while conductors are those material which can easily conduct the electric current. Similarly, semiconductors are those materials which have some properties from insulators and some properties from the conductors. Or we can define them, semiconductors are those material which can be used as insulators as well as conductors. We also discussed the energy bands, that is the valence band and the conduction band for all these 3 classes of matter, and finally we discussed the covalent bond in semiconductors and the silicon crystal. In lecture number 4 we discussed the conduction in semiconductors, or simply current in semiconductors. We also discussed the n-type and p-type semiconductors as well in lecture number 4. Here we start lecture number 4 by discussing what is an electron and what is a hole. Similarly, what is electron-hole pair, what is a recombination process where electrons recombines with a hole. We also discuss the 2 types of current involved in semiconductor, that is electron current and the hole current. A process termed as a doping, where we add impurities in our intrinsic semiconductor. And finally, we discuss the formation of n-type and p-type semiconductors. In lecture number 5, we discuss the formation of a p-n junction when we inject the p-type material or n-type material. When we create the p-type and n-type material, so the meeting point between this p-type and n-type material is known as a p-n junction. So the formation of p-n junction and then the formation of depletion region across that p-n junction were discussed in lecture number 5. Here we also discussed the energy diagrams during the formation of a p-n junction and during the formation of a depletion region. In lecture number 6 we discussed the p-n junction diode and its operation. Here we discuss how a diode can be connected in its forward bias and its reverse bias. When we connect a diode in its forward bias mode, then what is the forward current and what is the forward voltage? Similarly,
how a diode can be connected in a reverse bias, and when we connect a diode in its reverse bias, so what is the reverse current, what is the reverse voltage, and what was the reverse breakdown voltage. In lecture number 7 we discuss the voltage and current relationship of a p-n junction diode, which can be known as a VI characteristics of a diode. Here we discuss the VI characteristics of a diode when it is connected in forward bias and when it is connected in a reverse bias. Completely they will be termed as a VI characteristic curve of a diode. Then we discuss the diode approximations or the diode models, the ideal diode model, the practical diode model, and the complete diode model. In lecture number 8 we discuss the diode applications, and one most important application of a diode, that is the rectifiers and its two types, half wave rectifier and full wave rectifier. Starting with the half wave rectifier, we discuss the block diagram or the circuit diagram of a half wave rectifier circuit. Then we discuss the working or the operation of a half wave rectifier circuit. We also discuss the average value of the output voltage of a half wave rectifier. We also discuss the peak inverse voltage in case of a half wave rectifier. Then we discuss the full wave rectifier and its two types, that is center tape transformer based full wave rectifier and the bridge full wave rectifier. In lecture number 9 we discuss the diode applications, the other two important diode applications, that is the diode limiters and the diode clampers. Diode limiters can also be termed as diode clippers or diode slicer, जबकि clampers को हम DC restorer भी कह सकते हैं. We discuss what is diode limiter and what are the types of a diode limiter, that is the positive limiter, negative limiter, and the dual limiter. Similarly, we discuss the biased diode limiter. After that, we discuss the diode clampers and its two types, positive clamper and the negative clamper. In lecture number 10, we start the concept of a special purpose diode, which is actually chapter number 3 of our textbook. Here we discuss what is a Zener diode, what is the working or operation of a Zener diode, what are the two types of a breakdown in a Zener diode, that is a Zener breakdown and an avalanche breakdown, what is the breakdown characteristics of a Zener diode. Then we discuss the Zener regulation, the Zener equivalent circuit, the power dissipation, and the Zener power derating, etc. etc. In lecture number 11 we discuss the Zener voltage regulation and the Zener limiting action. Here we discuss that how Zener regulation is achieved with a variable input voltage, यानी जब हम इनपुट को वेरी करते हैं, Zener diode हमें constantly fixed amount of voltage across its terminal provide करेगा, जिसको हमने voltage regulation का नाम दिया हुआ था. ये कैसे possible होगा. Then we discuss the Zener limiting action and the three possible way of Zener limiting action, that is the positive limiting, negative limiting, and the dual limiting. Today in this lecture we will start the concept of a special purpose diode by discussing the Varactor diode. Then we will move towards the optical diodes. In optical diodes we will discuss light emitting diode, the quantum dots, which are not actually the diodes but they can be used with the diodes. Similarly, we will discuss the PhotoDiode and some other types of diode later on in this lecture, that is laser diode, the Schottky diode, the pin diode, the step recovery diode, the tunnel diode, and the current regulator diode. Recommended books for this course include an electronic devices with conventional current version, authored by Thomas L. Floyd. We are using 10th edition of this book. If you have any latest edition or even an older edition, it is also acceptable. The other book for this course is Electronic Devices with Electron Flow version, authored by the same author, that is Thomas L. Floyd, with the same edition, that is the 10th. So these are the two recommended books for the course of Electronics 1. But you will see that majority of the contents of this lecture as well as this course are taken from the first book, that is Electronic Devices with Conventional Current version. The Varactor diode always operates in reverse bias mode. मतलब जब भी हम
इस वैरेक्टर डायोड को ऑपरेट करवाएंगे तो हमेशा उसको रिवर्स वाइस में ऑपरेट करवाएंगे, जस्ट लाइक अ ज़ीनर डायोड, बिकॉज when we connect the varactor diode in its reverse bias, so its depletion region will expand, और इसका depletion region का expand होना और shrink होना एक्चुअल में varactor diode का कैपेसिटर के तौर पर यूज होना है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, varactor means variable capacitor, ये दो लफ्जों का मिलकर बना हुआ है वेरिएबल कैपेसिटर डायोड, यानी ऐसा डायोड कि जिसमें कैपेसिटेंस जो है वो वेरी हो रहा है। So this diode is doped to maximize the inherent or natural capacitance of the depletion region। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसका depletion region एक कैपेसिटेंस के तौर पर यूज होगा या बिहेव करेगा, तो उसकी कैपेसिटेंस को या उसकी जो नेचुरल कैपेसिटेंस उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी उसको इन्हेंस करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए, ताकि हम उसको जस्ट लाइक अ नॉर्मल कैपेसिटर यूज कर सकें, इसके लिए हमें डोपिंग लेवल को मैक्सिमाइज करना पड़ता है। यानी डोपिंग लेवल इंक्रीज करने से उसकी कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगी। नाउ द डिप्लेशन रीजन एक्ट्स एज अ कैपेसिटर डाइइलेक्ट्रिक। अब इस डायोड का हमारे पास चूंकि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स होंगे और इनके बीच में हमारे पास डिप्लेशन रीजन होगा, दैट डिप्लेशन रीजन जो कि वोल्टेज के साथ श्रिंक होगा या एक्सपेंड होगा, इट विल एक्ट लाइक अ कैपेसिटर डाइइलेक्ट्रिक। जिस तरह कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, बिल्कुल उसी अंदाज में ये डिप्लेशन रीजन जो है डाइइलेक्ट्रिक के तौर पर यूज होगा, बिकॉज ऑफ इट्स नॉन कंडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। और डाइइलेक्ट्रिक मीडियम हमेशा हमारे पास इंसुलेटर होता है, यानी जिसने कंडक्शन नहीं करवानी, तो चूंकि डिप्लेशन रीजन भी एज ए बैरियर के तौर पर यूज होता है या फ्लो को ब्लॉक करने के लिए यूज किया जाता है, या पीएन जंक्शन के क्रॉस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट रखता है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं नॉन कंडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डिप्लेशन रीजन, और इसी बेसिस पर हम इसको डाइइलेक्ट्रिक मीडियम कंसिडर करते हैं बिटवीन द टू प्लेट्स। Now the P and N regions are conductive, चूंकि P टाइप और N टाइप मटेरियल जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं रेस्पेक्टिवली N और P में, वो कंडक्टिव हैं एंड दे एक्ट एज द कैपेसिटर प्लेट्स, और ये बिल्कुल कैपेसिटर की दो प्लेट्स की तरह बिहेव करता है। इफ यू हैव सीन द सिंबल ऑफ ए कैपेसिटर, कुछ इस तरह का हमारे पास इसका सिंबल होता है, जिसमें लेट्स से ये प्लेट A है, दूसरा हमारे पास प्लेट B, यानी दो प्लेट्स होते हैं, इनके बीच में हमारे पास एयर होता है या हमारे पास कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम जिसको हम इंसुलेटर कंसिडर करते हैं, वो हम यूज करते हैं। तो हमारे पास ये जो दो प्लेट्स हैं, इसके जगह पर हम पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स को कंसिडर करते हैं, और इनके बीच में जो डिप्लेशन रीजन है वो हमारे पास क्या है, दैट इज द कैपेसिटर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। Now capacitance is determined by the parameters of plate area. We have already learned in सर्किट एनालिसिस दैट कैपेसिटर में तीन चीजें मैटर करती हैं, या किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। द प्लेट एरिया, इफ यू कैन सी इन द फार्मूला, C is directly proportional to the A is representing the plate area, तो जितना हमारे पास किसी प्लेट का एरिया ज्यादा होगा उतनी ही उसमें कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगी। द सेकेंड थिंग इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, उनका अपना अपना कांस्टेंट है। लाइक हमारे पास एयर है तो उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ और होगा, उसकी कुछ और वैल्यूज होगी। इसी तरह से अगर हम वुड इस्तेमाल कर लें, इसी तरह से प्लास्टिक रबर इस्तेमाल कर लें, तो हर एक मटेरियल की अपनी एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है, एंड दैट इज शोन बाय द एप्सिलॉन। द थर्ड थिंग इज प्लेट सेपरेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय D। D stands for distance। तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त हमारी कैपेसिटेंस जो है वो इस D के साथ इनवर्स रिलेशन में है, यानी जितना इन प्लेट्स के बीच में सेपरेशन ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगी, उतनी आपके पास इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम होगी, और जितना इनके बीच में सेपरेशन कम होगा उतनी ही कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। इन अदर वर्ड्स, अगर हम डिस्टेंस को कम कर दें तो उससे कैपेसिटेंस पर क्या असर पड़ेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें
यानी सेपरेशन को इंक्रीज कर दें तो उसका कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा कि कैपेसिटेंस जो है वो कम हो जाएगी। सो दैट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, जिसमें 3 चीजों पे डिपेंडेंट है, एरिया ऑफ प्लेट्स, द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। नाउ व्हेन वी कनेक्ट आवर वैरेक्टर डायोड इन इट्स रिवर्स बायस मोड, इट एक्ट्स एज अ वेरिएबल कैपेसिटर। तो ये बिल्कुल एक वेरिएबल कैपेसिटर के तौर पर बिहेव करेगा। कैपेसिटर की डेफिनेशन हमें याद है कि सिंपल डेफिनेशन कैपेसिटर की ये है कि इट स्टोर चार्ज, ये चार्ज को स्टोर करता है। सो हियर यू कैन सी दैट हमारे पास एक डायोड गिवन है जिसमें हमारे पास पी टाइप और एन टाइप मटेरियल है। पी टाइप एक प्लेट को रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटर के, और एन टाइप मटेरियल जो है वो दूसरे प्लेट को रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटर के। जबकि इन दोनों के बीच में हमारे पास ये येलो कलर में नजर आ रहा है, दैट इज द पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन मीन्स कि जहां पर आपका पी टाइप और एन टाइप आपस में मिल रहे थे। जबकि इस पी एन जंक्शन के एक रास जो हमें ग्रे कलर में नजर आ रहा है, दैट इज द डिप्रेशन रीजन, जो कि हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है इस पैरेंथेसिस के थ्रू। सो दैट इज द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, बल्कि एक्चुअल में ये हमारे पास डिप्लेशन रीजन है जो कि कैपेसिटर के डाई इलेक्ट्रिक के तौर पर यूज होता है। Here you can see that the V bias, that is the bias voltage is connected such that कि इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमने डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जबकि इस बैटरी का जो पॉजिटिव है वो हमने डायोड के नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है। सो वी कैन से दैट नाउ दिस डायोड इज इन रिवर्स बाइस। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस के लिए क्या कंडीशन थी कि बैटरी का पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव के साथ और बैटरी का नेगेटिव डायोड के नेगेटिव के साथ था। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो डिप्लेशन रीजन है उसकी जो वेरिएशन है वो रिवर्स बाइस में ज्यादा डोमिनेंट है, तो इस वजह से हम बैटरी को रिवर्स बाइस में कनेक्ट करवाते हैं। ऑन द अदर हैंड हमें सिंबल शो करवाया गया है वेरिएबल कैपेसिटर का। अगर हम देखें तो ये उसी तरह आम रेक्टिफाइड डायोड की तरह का ही है, एक्सेप्ट दैट कि उसका जो नेगेटिव टर्मिनल था उस पर हमने एक लाइन के बजाय 2 लाइंस ड्रॉ की हुई है, और ये 2 लाइंस जो हैं ये एक्चुअल में कैपेसिटर की 2 प्लेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो है तो एक्चुअल में ये डायोड ही, लेकिन चूंकि एक वेरिएबल कैपेसिटर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो हमने डायोड और कैपेसिटर दोनों की सिंबल्स को कंबाइन किया हुआ है इस एक सिंबल के अंदर। अब जब भी किसी सर्किट के अंदर आपको इस तरह का सिंबल मिलेगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैपेसिटर के सिंबल पर एरो का निशान लगाया गया है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा डिप्लेशन रीजन जो है या पूरा हमारा ये डायोड जो इस वक्त है ये एक कैपेसिटर के तौर पर यूज होना है, और कैपेसिटेंस जो है इसकी वो वेरी कर रही है, यानी दैट इज अ वेरिएबल कैपेसिटर कि जिसकी कैपेसिटेंस ने वेरी होना है, कम या ज्यादा होना है, डिपेंड करता है हमारे वी बाइस पर। ओके, एज द रिवर्स बाइस वोल्टेज इंक्रीजेज, अब इसका ऑपरेशन कैसा है कि जब हम रिवर्स बाइस में वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, दैट इज वी बाइस, डिप्लेशन रीजन वाइडन्स। तो चूंकि रिवर्स बाइस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन टर्मिनल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, एज अ रिजल्ट हम क्या कह सकते हैं कि जो डिप्लेशन रीजन था, जो हम वी बाइस की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे ये एक्सपेंड होता जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन एरो से मैं रिप्रेजेंट करता हूं कि जो नॉर्मल था उससे अब एक्सपेंड हो चुका है, इफेक्टिवली इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन। और जितना डिप्लेशन रीजन वाइडन होगा तो इसका मतलब है कि वो जो प्लेट्स हैं जो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स के बने हुए हैं उनमें सेपरेशन भी बढ़ेगा, दस डिक्रीजिंग द कैपेसिटेंस। और पिछला जो फार्मूला था जहां पर हमने पढ़ा हुआ था कि कैपेसिटेंस जो है वो डिस्टेंस के इनवर्स रिलेशन में था, तो यानी सेपरेशन बढ़ने से हमारे पास क्या होगा, कैपेसिटेंस में डिक्रीमेंट आएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। व्हेन द रिवर्स बाइस वोल्टेज डिक्रीजेस, अगर हम वी बाइस को कम कर दें, सो द डिप्लेशन रीजन गेट नैरोज, तो डिप्लेशन रीजन क्या करेगा, वो नैरो होता जाएगा, thus increasing the capacitance, और एज अ रिजल्ट उसकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, एज शोन इन फिगर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। फॉर दिस पर्टिकुलर डिवाइस, यानी जो हम लेट्स से एक वैरेक्टर डायोड कंसिडर कर रहे हैं, the CT, the total capacitance varies from 30 picofarad to slightly less than 4 picofarad। इस तरह का अगर हमारे पास कोई
डिवाइस होगा या वैरेक्टर डायोड होगा तो उसकी जो टिपिकल वैल्यू होगी कैपेसिटेंस की, टोटल वैल्यूज दैट विल बी in between 30 picofarad to slightly less than 4 picofarad, यानी हमारे पास 4 picofarad से लेकर 30 picofarad तक इसकी जो कैपेसिटेंस है वो वेरी करेगी. When we vary the reverse voltage from 1 volt to 30 volt, यानी अगर हम रिवर्स वोल्टेज 1 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक वेरी करेंगे तो उसके प्रोपोर्शनली इसका जो कैपेसिटेंस है वो 30 और 4 पिकोफैराड के बीच में कम या ज़्यादा होगा. लाजमी बात है अगर हमारे पास वोल्टेज कम है तो इसका मतलब है कि हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटेंस है, और जो जो हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे टुवर्ड्स 30 वोल्ट हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस जो है वो कम होती जाएंगी एंड लेट्स से मिनिमम वैल्यू उसकी 4 पिकोफैराड तक है. सो टोटली डिपेंड कर रहा है हमारे रिवर्स वोल्टेज पर. द वैरेक्टर कैपेसिटेंस आर टिपिकली अवेलेबल फ्रॉम अ फ्यू picofarads to several hundred picofarads. मार्केट में इस वक्त जो अवेलेबल वेरिएबल कैपेसिटर्स हैं या वैरेक्टर डायोड्स हैं वो हमारे पास फ्यू पिकोफैराड से लेकर several hundred picofarads तक रेटिंग्स की जो है वो अवेलेबल हैं. This diagram is showing the Varactor diode capacitance which varies with the reverse voltage. Here you can see that again reverse bias में हमने बैटरी लगाई हुई है नेगेटिव डायोड के पॉजिटिव के साथ और बैटरी का पॉजिटिव डायोड के नेगेटिव के साथ है. सो जब हम रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाएंगे यहाँ पर चूंकि नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इन पी टाइप मटेरियल में मौजूद होल्स को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि इस एन टाइप मटेरियल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा. एज अ रिजल्ट डाई इलेक्ट्रिक वाइडेंस यानी डिप्लेशन रीजन जो है वो क्या हो जाएगा, वाइडन हो जाएगा. सो ग्रेटर रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने से लेस कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी. हियर यू कैन सी दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड जिसको हमने VR यानी रिवर्स वोल्टेज कंसीडर किया हुआ है. तो रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा, हमारे पास प्लेट्स के बीच में सेपरेशन बढ़ रहा है. सो वी आर हैविंग द लेस कैपेसिटेंस. ऑन द अदर हैंड अगर हम इस VR को यानी वोल्टेज अक्रॉस डायोड को रिड्यूस कर दें से वी आर डिक्रीजिंग द VR फ्रॉम द प्रीवियस स्टेट. सो व्हाट विल हैपन, हमारे पास जो डिप्लेशन रीजन था वो अब पिछले के मुकाबले में क्या हो गया है, नैरो हो चुका है. सो द डाई इलेक्ट्रिक नैरोज, और नैरोज होगा तो वी आर अप्लाइंग द लेस रिवर्स बायस, इट मींस वी आर हैविंग द ग्रेटर कैपेसिटेंस. यानी जितना हमारे पास इन प्लेट्स के बीच में सेपरेशन कम होती जाएगी, डिप्लेशन रीजन नैरो होता जाएगा, उतनी ही उसकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होती जाएगी. और यू कैन से दैट जितना हमारे पास वोल्टेज ज्यादा होगा तो डिप्लेशन रीजन ज्यादा होगा, और डिप्लेशन रीजन बढ़ने के बायस हमारे पास कैपेसिटेंस जो है उसकी कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी. एप्लीकेशन ऑफ द वैरेक्टर डायोड्स, द मेजर एप्लीकेशन ऑफ ए वैरेक्टर्स इज द ट्यूनिंग सर्किट. हम जो ट्यूनिंग सर्किट्स इस्तेमाल करते हैं लाइक टीवी वगैरह में या रेडियोज वगैरह में, तो उनमें वैरेक्टर डायोड्स को जो है यूज किया जाता है एज ए मेजर डिवाइस के तौर पर. लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव द वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जब हम अपने टेलीविजन सेट में वेरी हाई फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं जिसका लोअर बैंड जो है 49 टू 108 मेगाहर्ट्ज है और उसका हायर बैंड जो है 169 टू 216 मेगाहर्ट्ज है, तो उसके लिए हम वैरेक्टर डायोड को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये वेरिएशन प्रोड्यूस करता है, और इन्हीं वेरिएशन को इस्तेमाल करके फिर हम VHF को या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी को या जो सैटेलाइट के रिसीवर्स हैं या इवन जो हमारे पास सेलुलर कम्युनिकेशन है जिसमें हमारे पास GSM हम यूज करते हैं 900 मेगाहर्ट्ज के साथ या 1800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड के साथ, तो इन एप्लीकेशंस में वैरेक्टर डायोड को नॉर्मली यूज किया जाता है. Another important special purpose diode is light emitting diode. As its name reveals, that diode which emits light. So when the LED or the light emitting diode is in forward bias, electron cross the p-n junction from n-type material and enters into p-type material and then recombine with holes in that p-type material. हम पहले भी सिंपल डायोड के लिए पढ़ चुके थे कि जब हम डायोड को फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट करते हैं सो इलेक्ट्रॉन्स पीएन जंक्शन को क्रॉस करते हैं जो कि एक्चुअल में एन टाइप मटेरियल में थे और ये पी टाइप मटेरियल में इंटर हो जाते हैं जहां पर मौजूद होल्स के साथ ये रिकम्बाइन हो जाते हैं. व्हेन रिकम्बिनेशन टेक्स प्लेस, और जिस दौरान
हमारा इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ रिकम्बाइन हो रहा होता है। दी रिकम्बाइनिंग इलेक्ट्रॉन्स रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो अपने एन टाइप मटेरियल से पी टाइप में दाखिल हो चुके थे बाय मींस ऑफ सम एक्सटर्नल रिसोर्सेज, उन्होंने एनर्जी गेन की होती है, यही एनर्जी वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन जो है वो रिलीज करते हैं। यानी जब भी ये इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स इन होल की सतह पर आने के लिए अपने पास जो मौजूद एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा या एडिशनल एनर्जी इन्होंने गेन की थी, वो रिलीज करते हैं। द एमिटेड लाइट टेंड्स टू बी मोनोक्रोमेटिक, और ये जो हमारे पास ये लाइट है दैट इज मोनोक्रोमेटिक, यानी सिंगल कलर लाइट जो है वो एमिट करेंगे। दैट डिपेंड्स ऑन द बैंड गैप एंड अदर फैक्टर्स। और ये लाइट किस नौइयत की होगी या ये एमिटेड लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटिक होगी, ये डिपेंड करता है इसके बैंड गैप पे, और कुछ और फैक्टर्स भी हैं। A large exposed surface area on one layer of the semiconductor material permits the photon to be emitted as visible light. अब यहाँ पर एक टर्म आप समझ लें, visible light. Visible light means कि जिसको हम नॉर्मल ह्यूमन आई से देख सकते हैं। जब भी हम ऐसा डिवाइस बनाएंगे लाइक एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, तो एक्चुअली ये सेमीकंडक्टर मटेरियल का ही बना होगा। इसके सरफेस पर हम एक एरिया एक्सपोज रख देते हैं ताकि जो फोटॉन्स ये परमिट करता है या ये एमिट करता है वो हमें विजिबल लाइट की सूरत में नजर आ सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक एलईडी शोन की गई है और इस एलईडी के क्रॉस जब हम वोल्टेज सप्लाई कनेक्ट करते हैं, सो इफ यू कैन सी दैट विद द एन रीजन वी आर कनेक्टिंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, व्हाइल विद द पी रीजन वी आर कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो जब हम बैटरी को यूं कनेक्ट करते हैं लाइक दिस वन, इसका मतलब है ये एलईडी फॉरवर्ड बाइस में होगी, या आप कह सकते हैं कि एलईडी को हम फॉरवर्ड बाइस में ऑपरेट करवाते हैं। जब ये V22 की वोल्टेज हम इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो N टाइप रीजन में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को P एन जंक्शन की तरफ रिपेल करेंगे। आगे से हमारे पास जो P टाइप मटेरियल है उसके साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो वहां पर इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो इस जंक्शन को क्रॉस कर सकें और P रीजन में दाखिल हो सकें, तो P रीजन में मौजूद आपको होल्स नजर आ रहे होंगे जिनके साथ ये इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन हो चुके हैं। जब ये रिकम्बिनेशन प्रोसेस हो रही होती है तो उस दौरान यही इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइट एमिट करते हैं या फोटॉन्स एमिट करते हैं जो कि हमें विजिबल लाइट की सूरत में नजर आती है। एंड अगेन यू कैन सी दैट इस पी रीजन के ऊपर ये जितना भी एरिया यहाँ पर शो किया गया है दैट इज द एक्सपोज्ड एरिया, कि जहां से वो फोटॉन्स लाइट की सूरत में हमें निकलते हुए नजर आए। In the second part of this diagram, we have shown a symbol for an LED. When forward bias, it emits light. तो आप देख सकते हैं कि ये डायोड का ही सिंबल है, सिंपल पी जंक्शन डायोड का। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर हमने लाइट को एमिट होता हुआ दिखाई दिया है। मीन ये जो एरो कीज आपको नजर आ रही है ना, दे आर रिप्रेजेंटिंग द एमिशन ऑफ द लाइट फ्रॉम द डायोड। सो दैट इज द आप कह लें कि फॉरवर्ड बाइस में एलईडी का ऑपरेशन है कि वो कैसे लाइट को एमिट कर रहा है। What are the colors of LED? ये जो हम लाइट एमिटिंग डायोड को मुख्तलिफ कलर्स में देखते हैं अपने डेली लाइफ में, ये कलर्स कैसे हमें मिलती हैं और ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। Various impurities are added during the doping process to establish the wavelength of the emitted light. मुख्तलिफ कलर्स की एलईडी या मुख्तलिफ एलईडीज का मुख्तलिफ कलर जनरेट करना बेसिकली डिपेंड करता है जो लाइट एमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ पर। और ये वेवलेंथ हम कैसे एडजस्ट करेंगे? इफ वी ऐड वेरियस इम्प्योरिटीज ड्यूरिंग द डॉपिंग प्रोसेस, यानी जब हम सेमीकंडक्टर मटेरियल में इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे थे तो हम मुख्तलिफ किस्म की इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे, तो बहुत चांसेस है कि हमारे पास मुख्तलिफ के वेवलेंथ्स इस्टेब्लिश होंगे और यही वेवलेंथ्स डिसाइड करते हैं कि हमारे पास जो एलईडी से लाइट मिल रहा है वो किस कलर में है, आया वो रेड है या ऑरेंज है या येलो है या ग्रीन या एटसेट्रा एटसेट्रा। Some LEDs emit non-visible photons having longer wavelengths. These are in infrared portion of the spectrum. हाँ, कुछ LEDs ऐसी भी हैं कि जो photons तो emit करती हैं लेकिन वो human eye की जो
डिटेक्शन है उस रेंज से बाहर है, यानी वो ऐसे वेवलेंथ्स हैं जो कि नॉर्मल ह्यूमन आई से नहीं देखे जा सकते, तो वो भी है तो लाइट ही, लेकिन हम उसको नॉन विजिबल लाइट से कंसिडर करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे दिए गए डायग्राम में आपको एक स्पेक्ट्रम शो किया गया है या पोर्शन ऑफ ए स्पेक्ट्रम शो किया गया है विच इज रिप्रेजेंटिंग द विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी ये स्पेक्ट्रम का वो पोर्शन है जो कि विजिबल लाइट को इंडिकेट कर रहा है। हियर यू कैन सी दैट जो नीचे स्केल गिवन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द वेवलेंथ इन नैनोमीटर स्टार्टिंग विद द 400 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर तक। सिमिलरली ऊपर का जो स्केल है दैट इज रिप्रेजेंटिंग फ्रीक्वेंसी इन टेराहर्ट्ज एंड वी कैन सी दैट द फ्रीक्वेंसी इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 380 टेराहर्ट्ज और 750 टेराहर्ट्ज तक मैक्सिमम शो किया गया है। सो यू कैन सी दैट कि जो विजिबल लाइट है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर तक ही है, यानी अगर 400 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर या बहुत सारे केसेस में हम 700 कंसीडर करते हैं जहां तक हमारे पास रेड लाइट मिल रहा है, तो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में अगर कोई एलईडी लाइट एमिट कर रहा है दैट विल बी द विजिबल लाइट। अगर इससे कम वेवलेंथ वाली होगी या इससे ज़्यादा वेवलेंथ वाली होगी तो हम कह सकते हैं कि वो लाइट ह्यूमन आई के थ्रू विजिबल नहीं है, यानी ह्यूमन आई उसको नहीं देख सक पाएगी। इसी तरह से अगर आप देखें जो ऊपर वाला स्केल है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जबकि वेवलेंथ जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज हो रहा है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये है कि जब वेवलेंथ हमारे पास मिनिमम होगा तो वहां पर फ्रीक्वेंसी हमारे पास मैक्सिमम है, और जब वेवलेंथ हमारे पास मैक्सिमम है इस केस में या इस पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम के तहत, तो उस वक्त हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम है, यानी दोनों आपस में इनवर्स रिलेशन है दोनों का। तो आप उसको वेवलेंथ के थ्रू भी कह सकते हैं या आप उसको फ्रीक्वेंसी वाइज भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये विजिबल लाइट है और ये नॉन विजिबल लाइट है। रेड जो लाइट होगा उसका जो वेवलेंथ है दैट इज 650 नॉर्मल 650 नैनोमीटर। इसी तरह से ऑरेंज जो है वो 590 नैनोमीटर का वेवलेंथ की अगर लाइट होगी तो वो हमें ऑरेंज प्रोड्यूस करके देगी। इसी तरह से अगर हमारे पास येलो एलईडी है तो इसका मतलब होगा कि वो जो लाइट एमिट कर रही है दैट इज 570 नैनोमीटर एटसेट्रा एटसेट्रा। LED materials, normally LED diode किन material से बनाया जाता है? So if you can see that we are using the gallium arsenide that was used in early LEDs. जो स्टार्ट में LEDs इन्वेंट हुई थी उसमें हमने गैलियम आर्सेनाइड का सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किया हुआ था। इट एमिट्स IR रेडिएशन विच इज इनविजिबल, और ये LEDs थी लेकिन हम ह्यूमन आई जो है इसको देख नहीं पा रहे थे, so that there was the invisible light because it was emitting the IR radiation. First visible red LED was made of a gallium arsenide phosphide on a gallium arsenide substrate. Similarly, the brighter red and orange LEDs were made of a gallium phosphide substrate. For pale green light, gallium phosphide was used as the light emitter. First super bright LED and yellow and green LEDs were made of a gallium, aluminium, arsenide, phosphide, etc. etc. Quantum dots. Quantum dots are actually not the diodes, but they are a form of nanocrystals, and they are made of the semiconductor material like silicon, germanium, cadmium sulfide, cadmium selenide, and indium phosphide, which are all the semiconductor materials. In size, they are from 1 nanometer to 12 nanometer in diameter. यानी इनका साइज जो है अगर डायमीटर में हम उसका साइज नापें सो 1 नैनोमीटर से लेकर 12 नैनोमीटर तक नॉर्मली इनका साइज होता है। एंड बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज द क्वांटम इफेक्ट्स अराइज ड्यू टू द कन्फाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में जुड़े रहते हैं
क्योंकि क्वांटम इफेक्ट की वजह से, जो कि इनके स्मॉलर साइज की वजह से है। एज अ रिजल्ट मटेरियल प्रॉपर्टीज आर वेरी डिफरेंट देन द नॉर्मल मटेरियल, और तभी हम इसको नॉर्मल मटेरियल से अलग कैटेगराइज करते हैं, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो नॉर्मल मटेरियल से बहुत मुख्तलिफ हैं। द बैंड गैप इज डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द डॉट्स। क्वांटम डॉट्स के जो साइजेस हैं वो बैंड गैप को डिसाइड करते हैं, या आप ये कंसिडर कर लें कि बैंड गैप जो है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द डॉट्स पे। व्हेन एक्साइटेड फ्रॉम एन एक्सटर्नल रिसोर्स, जब हम इन क्वांटम डॉट्स को एक्सटर्नली energize करते हैं, dots formed from semiconductors emit light, so they emit light in the visible range में लाइट को emit करते हैं, as well as infrared and ultraviolet। जरूरी नहीं है कि ये विजिबल लाइट हो, बल्कि जिस तरह आम LED कर रही थी उसी तरह से ये इंफ्रारेड में भी और अल्ट्रा वायलेट लाइट को भी emit कर सकती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, और ये डिपेंड करता है इनके साइज पर। The higher frequency blue light is emitted from solution with smaller dots। अगर quantum dots का size smaller होगा and of course band gap जो है उनका larger होगा, so इनकी से जो light emit होगी that will be blue light। And red light is emitted from the solution with larger dots। और अगर इन quantum dots का size larger होगा तो band gap इसमें जो है वो smaller होगा, और उस वक्त जो light emit करेंगे that will be red in color। Although quantum dots are not the diodes, they can be used in construction of LEDs as well as display devices like television etc. And a variety of other applications, और मुख्तलिफ किस्म की दूसरी applications में भी इसको use किया जाता है। To produce white light, blue LEDs are coated with a phosphorus that adds yellow light to the blue। White हासिल करने के लिए हमें blue LEDs को phosphorus के साथ ऐड करना पड़ता है या कोट करना पड़ता है, ताकि हमारे पास जो है वो वाइट कलर हमें मिल सके। यानी येलो लाइट को जब आप ब्लू लाइट के साथ मिक्स करवाते हो, सो दे आर फॉर्मिंग द वाइट। द रिजल्ट इज नॉट अ प्योर वाइट, ऑल्दो हमें वाइट चाहिए, प्योर वाइट नहीं होगा, बट टेंड्स टू बी हार्श एंड मेक्स कलर्स अपीयर अननेचुरल, बट स्टिल हम उसको वाइट कंसिडर कर सकते हैं, ऑल्दो थोड़ा सा ये अननेचुरल जो है वो अपीयर होगा। While this is satisfactory for display and signs, many people do not like it for home lighting। अगरचे हम इसको डिस्प्लेज और साइंस बोर्ड वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मली पीपल इसको होम लाइटिंग के लिए रिकमेंड नहीं करते। The solutions are shown containing quantum dots glowing with specific colors that depends on the size of their डॉट्स। मुख्तलिफ किस्म के जार्स में हमें मुख्तलिफ किस्म की क्वांटम डॉट्स गिवन है, वेरिंग विद देयर साइजेस। हियर यू कैन सी दैट 548 नैनोमीटर। तो हमारे पास ये डिफरेंट कलर जो है वो एमिट कर रहे हैं। जो हमारे पास क्वांटम डॉट्स का साइज जो है वो डिफर होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, उसके साथ साथ इसका कलर भी डिफरेंट हो रहा है, या अलग से कलर जो है वो जनरेट कर रहा है या एमिट कर रहा है। Another important photo device in special purpose diode is a photodiode। That is a device which can be operated in reverse bias with a small transparent window that allows light to strike the PN junction। फोटोडायोड एक ऐसा डायोड है जिसको नॉर्मली रिवर्स बाइस में ऑपरेट किया जाता है, जस्ट लाइक अ ज़ीनर डायोड। इसकी केसिंग के ऊपर एक स्मॉल ट्रांसपेरेंट विंडो होती है जिसके थ्रू लाइट इसके पीएन जंक्शन पर फॉल होती है और उसके मुताबिक इसने ऑन या ऑफ होना होता है। हियर इन डायग्राम यू कैन सी दैट द फोटोडायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बाइस विद द बैटरी, such that बैटरी का नेगेटिव डायोड के पॉजिटिव के साथ और बैटरी का पॉजिटिव डायोड के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। फिगर बी में टिपिकल डिवाइसेस शो की गई हैं। आपको मुख्तलिफ केसिंग में ये फोटो डायोड मिल सकता है मार्केट में, और इस हर एक केसिंग के ऊपर एक स्मॉल विंडो रखी होती है जिसके थ्रू हम इस पे लाइट फॉल करवाते हैं जहां पर इसका पीएन जंक्शन होता है, और इस लाइट के मुताबिक उसकी पीएन जंक्शन श्रिंक या एक्सपेंड होगा
तो उसी के मुताबिक इसने कंडक्शन करनी है या कट ऑफ मोड में रहना है। इस फोटो डायोड के लिए जहां पर हमने फिगर ए में सिंबल यूज किया हुआ था, एक और सिंबल भी यूज किया जा सकता है लाइक दिस वन, जहां पर डायोड को रिप्रेजेंट किया गया है और उसके ऊपर लाइट को जो है फॉल करवाया गया है। तो अगर आपको कभी भी किसी सर्किट के अंदर ये वाला सिंबल या इस तरह का सिंबल नजर आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि दैट इज रिप्रेजेंटिंग द फोटो डायोड। Like the rectified diode, it has a very small reverse leakage current produced by thermally generated electron hole pairs. आम डायोड की तरह जब हम इसको रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं तो सिवाय लीकेज करंट के, जिसको हम रिवर्स लीकेज करंट कहते हैं और जो कि थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर के थ्रू होता है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। व्हेन इट्स पीएन जंक्शन इज एक्सपोज्ड टू लाइट, हाँ जब इसके पीएन जंक्शन पर लाइट गिरती है या लाइट जो है उसको प्रोवाइड की जाती है, सो द रिवर्स करंट इंक्रीजेस विद द लाइट इंटेंसिटी। अब रिवर्स करंट जो है उसने इंक्रीज होना होता है एज पर लाइट इंटेंसिटी या अकॉर्डिंग टू द लाइट इंटेंसिटी। मतलब लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट इंक्रीज होगा, लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो उसके साथ साथ रिवर्स करंट भी डिक्रीज होगा। व्हेन देयर इज नो इनसाइडेंट लाइट या इंसिडेंट लाइट, जब हमारे पास किसी किस्म की लाइट मौजूद नहीं है या इस पीएन जंक्शन तक नहीं पहुंच रही, द रिवर्स करंट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एंड इज कॉल्ड द डार्क करंट। तो उस वक्त हमारे पास जो रिवर्स करंट है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और हम उसको इजीली नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं और उस वक्त उसको डार्क करंट कहा जाता है। डार्क करंट मीन्स कि ऐसा करंट जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, डार्क मीन्स एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी वो करंट जब जिस वक्त हमारे पास किसी किस्म का लाइट मौजूद ना हो। एंड इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, और जो हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, विच इज एक्सप्रेस्ड एज इरेडियंस, जिसको हम लाइट इंटेंसिटी को हम इरेडियंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज इन द रिवर्स करंट, तो उसके साथ साथ रिवर्स करंट का वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्स करंट डायरेक्टली रिलेशन रखता है लाइट इंटेंसिटी के साथ। लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाओ, रिवर्स करंट की अमाउंट भी इंक्रीज होती जाएगी। लाइट इंटेंसिटी को डिक्रीज कर दो तो उसके साथ साथ रिवर्स करंट भी डिक्रीज होता जाएगा। Here in this figure the operation of a photodiode is shown. हम देख सकते हैं कि जो फिगर ए में है, there is no light so no current except negligible dark current, यानी सिवाय डार्क करंट के जिसको हम इजीली नेग्लेक्ट कर सकते हैं, किसी किस्म का करंट फ्लो नहीं होगा। Here you can see that light is shown off, यानी जब हमारे पास डायोड के ऊपर किसी किस्म का लाइट जो है वो फॉल नहीं हो रहा या किसी किस्म की लाइट जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है या हमने अपने डायोड को लाइट में एक्सपोज नहीं किया हुआ, तो इस वक्त हमारे पास सिवाय लीकेज करंट के और कुछ नहीं है जिसको हम जीरो कंसिडर कर लेते हैं। When there is incident light, so resistance decreases and there is reverse current. अब हम जब लाइट को ऑन करते हैं और इस एलईडी तक लाइट पहुंचती है, इसके जंक्शन तक जो लाइट पहुंचती है, तो ये रिवर्स बायस में कंडक्शन स्टार्ट कर लेता है। एंड हियर यू कैन सी दैट कि इसमें से रिवर्स करंट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो जितनी लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, इसके अक्रॉस जो करंट की फ्लो है वो भी बढ़ती जाएगी और जितनी लाइट इंटेंसिटी कम होती जाएगी, इसके अक्रॉस रिवर्स करंट की फ्लो भी कम होती जाएगी। Other types of special purpose diodes include the laser diode, the Schottky diode, the pin diode, the step recovery diode, the tunnel diode, the current regulator diode, एटसेट्रा एटसेट्रा। और भी बहुत सारे इसके अलावा डायोड्स हैं, लेकिन जो हमारी टेक्स्ट बुक में है वो 5-6 ये स्पेशल पर्पस डायोड्स को जो है कवर करता है। तो इनकी कॉन्सेप्ट्स भी ऑलमोस्ट जो हम ऑलरेडी डायोड्स पढ़ चुके हैं, जीनर डायोड और एलईडी डायोड और फोटो डायोड, उनसे मिलते जुलते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड ऑल दीज डायोड्स फ्रॉम योर कोर्स बुक। What is next in lecture number 13? In lecture number 13, we will start the discussion on the transistors. In transistors, first of all, we will learn that what is a transistor, what are the types of transistors, that is bipolar junction transistor and the field effect transistor. Then we will focus on the bipolar junction transistor. We will discuss the types of the bipolar junction transistor, that is NPN and PNP. Similarly, we will discuss the structure of a bipolar junction transistor, the schematic symbols used for the BJT, the basic operation of a BJT, including the
base emitter junction and the base collector junction, and finally the transistor currents, the three types of currents involved in the BJT. Thank you very much. That is all for today. If you have any question, you can ask me through my email shahid.csit@sud.edu.bk. Once again, thank you very much.